Okay. Yawn. Guys, just a second, you know, just a second. मैंने है ना गलत चीज शेयर कर दी है. Just a second, guys. My file is opening. Yeah, it has. It is not visible. Ma'am, we can't see the screen. And even I can't see my screen because it was not shared, na? Yeah. Can you see my screen now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Yes, ma'am. Thank you so much. We have done all these things. The short forms also. The sentences also. I haven't taught you interrogative and interrogative that I would teach you. We have done past also and future also. इनका negative बना लेंगे, इनका practice भी कर लेंगे. And then I have already told you that I have a car, I have got a car. I told you everything. इसमें से positive negative हो गया है. Interrogative जब हम सीख जाएंगे तो ये title, ये table भी आपको clear हो जाएगा. We have done this exercise. This is wonderful. Now moving towards useful sentences. Yes, guys, this is amazing. As you know that vocabulary plays a vital role in the language. We should know all the vocabularies. Okay. So मेरे पास कुछ और अच्छे idioms हैं आप लोगों के लिए. It has 12 idioms. शुरू से करूं तो फिर हम पहले पढ़ लेते हैं. She has a sound knowledge of politics. अभी हमने सीखा है कि sound asleep हो या fast asleep हो, इसका मतलब है गहरी नींद में होना. लेकिन sound का meaning मैंने बता दिया था, good. Sound means good. तो क्या बोलेंगे उसको? Politics का good knowledge है, उसको politics का अच्छा knowledge है. She has a sound knowledge of politics. जैसे संदीप सर को इंग्लिश का बहुत अच्छा नॉलेज है. संदीप सर हैज अ साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, है ना? मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है मेरे कॉलेज के पहले से, फिर कॉलेज के बाद से, फिर कॉलेज में, अभी भी देखती आ रही हूँ. और मैंने इंग्लिश में संदीप सर जैसा नॉलेज किसी का नहीं देखा है. इसलिए मुझे ये लगता है that he has a sound knowledge of English language. Next है, you have a good sense of music. अच्छा, सेंस मतलब होता है समझ. अच्छी समझ है तुम्हें म्यूजिक की. अब कुछ भी म्यूजिक हो सकता है. It can be rap, it can be pop, it can be classical, it can be folk, it can be semi classical. बाकी आप लोग जानते ही होंगे. So अगर किसी को किसी भी म्यूजिक की अच्छी समझ है तो उसको बोलिए, you have a good sense of music. किसी को ड्रेस सेंस की बहुत अच्छी समझ होती है, उसकी क्लोथिंग इतनी शानदार होती है, उसका पसंद बहुत अच्छी होती है, तो ये भी कह सकते हैं कि अरे उसको तो बहुत समझ है फैशन की समझ है. ये आजकल एक और नया वर्ड निकला है, फैशनिस्टा. हैव यू हर्ड दिस वर्ड, फैशनिस्टा? Yes, ma'am. या सुना होगा कुछ लोगों ने. लिख के बताती हूँ. फैशनिस्टा. Fashionista is the person, can be a girl, can be a boy also. Like जो लोगों को फैशन की बहुत अच्छी नॉलेज है, those are called fashionista. Okay, so yeah, I'm here and let's go for it. Fashionista. I think A would not be there. Yeah. Yes, ma'am. Fashionista. Fashionistas भी कह सकते हैं. Fashionista means one person who has a great sense of fashion. Fashion can be clothing, fashion can be jewelry, accessories. कई लोग accessories भी कहते हैं. It is not accessory. हाँ, कई लोग इसे accessories भी कहते हैं, but that is actually accessories. So कई लोगों को बहुत knowledge होता है accessories का. Many people have knowledge of so many things, तो उनको अच्छा sense है ना? Next है, अरे मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है पेट में, मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे परफॉर्म करूंगी.
अक्सर हम लोगों के साथ होता होगा, यू माइट बी हैविंग दैट फीलिंग। तो कह सकते हैं आई एम वेरी नर्वस, यू कैन से आई हैव बटरफ्लाइज इन माय स्टमक, और ये मेरे पेट की गुदगुदी हो रही है, इसका मतलब मुझे डर लग रहा है, मुझे हेजिटेशन है, मुझे नर्वसनेस है, हेजिटेशन है। इसको और अच्छे शब्दों में बोलो, आई हैव बटरफ्लाइज इन माय स्टमक। जो इतना अच्छा वर्ड बोल रहा है उसको काहे की बटरफ्लाई, हाँ, यू नो वोकैबुलरी वेरी वेल, सो यूज इट। आई हैव बटरफ्लाइज इन माय स्टमक, I always use it. I really like it because I feel that this sentence gives me great command. लगता है कि हम बड़ी अच्छी इंग्लिश जानते हैं। जब भी बोलना होता है, अरे यार आई एम नर्वस, यू नो, all is well, all is well, all is well. तो all is well वाली सिचुएशन जब आती है तो उसे कहते हैं I have butterflies in my stomach. मुझे नर्वसनेस है, मीनिंग वो है। नर्वसनेस का मतलब ही होता है पेट में गुदगुदी होना, है ना। और पेट में चूहे कूदना मतलब होता है आई एम फीलिंग हंग्री, दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है इफ somebody is very very strong, if person is mentally very strong, physically खाली है लेकिन mentally ही बहुत strong है, in that way वो person जो है he has a cool head, बहुत 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 strong है। You can also say I have nerves of steel. मेरी नसें है ना स्टील की बनी है, इतनी आसानी से फर्क नहीं पड़ता मुझे, है ना। होते हैं internally strong, physically पता नहीं, but mentally, internally they are very strong. They can handle any stress, any big and unhandleable situations. They handle in like that. So that those people are called मजबूत लोग। and उसको बोला जाएगा I have a cool head। ऐसे भी बोल सकते हैं he has a cool head, like धोनी के लिए कहा जाता है काफी मजबूत हैं, शांत हैं, फिजिकली मेंटली बहुत शांत रहते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। we can say that. okay, next है nerves of steel, the same thing. Next is like my mother, she has a nerves of steel, same with my father also. okay, next is I have one pair of hands, इसका मतलब है I have one pair of hands, इसका एग्जैक्ट मीनिंग है कि मेरे पास में कोई साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ। I have nobody, no friend, I am alone, मैं अकेला हूँ। I have one pair of hands only, that means मैं अकेला हूँ यार, क्या क्या अकेले करूंगा, क्या क्या अकेले करूंगा। I have one pair of hands only, ठीक है। नेक्स्ट है मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, ये ईडीएम में नहीं है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। आई हैव नथिंग, आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद यू, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद यू, मुझे तुम्हारी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद योर प्रॉब्लम्स, तुमको जो करना है तुम करो, तुमको जो अच्छा लगे तुम वो करो, भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर। ओके, ऐसा कहना हो तो ऐसे ऐसे कहना नहीं चाहिए, सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट, आई हैव अ वाटरी माउथ, यहाँ पे अ लगा लेना यार, है ना। मेरे तो मुंह में पानी आ गया जब हम अपनी पसंद का खाना सुनते हैं, भूख लग रही हो, खाने की बात हो रही हो, मुंह में पानी आ जाता है। बोलिए आई हैव अ वाटरी माउथ, कम ऑन बोलिए, मेरी बात बोलिए, आई हैव अ वाटरी माउथ। I have a watery mouth. I have a watery mouth. गुड। जब जब मुंह में पानी आ mouth. जाए, जैसे ना वैसे मेरा है ना, मुझे गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, और कब अच्छे लगते हैं जब मुझे कुछ खाने का मन नहीं है तो फिर गोलगप्पे खा लो, अच्छा लगने लग जाता है। तो मुझे ना जैसे मैं गोलगप्पे के नाम सुनती हूँ ना, मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ वाटरी माउथ। ओके, चलिए, हल्का बुखार है, बोलना है हल्का बुखार है। हल्का का मतलब होता है कम बुखार, माइल्ड फीवर, माइल्ड फीवर। बहुत ज्यादा बुखार है, सीवियर फीवर, है ना। आप चाहो तो लिख लो सीवियर फीवर। बहुत ज्यादा बुखार है तो सीवियर पेन, सीवियर फीवर। कम बुखार है तो माइल्ड फीवर। हल्का बुखार है, ज्यादा नहीं है, हल्का सा है ना। नेक्स्ट है कल मैं ना गाड़ी से जा रही थी और रास्ते में क्या हुआ कि बारिश बहुत ज्यादा थी तो मुझे दिखा नहीं,
तो ऐसे टर्न लेते लेते है ना, ऐसा गाड़ी तो थोड़ी सी ऐसी टिल्ट हो गई, टेढ़ी हो गई, टेढ़ी हो गई, तो मैं गिरते गिरते बच गई। मतलब मैं कल मुझे ऐसा लग रहा था मैं बाल बाल बच गई, भगवान की कृपा से बाल बाल बच गई। जब बाल बाल जरा जरा सा बच जाओ, थोड़ा सा एकदम, वो नैरो एस्केप हो जाता है, नैरो एस्केप। आई हैड अ नैरो एस्केप, आई हैड अ हेयर ब्रेड एस्केप। अरे बाप रे, बच गए यार, अभी जाते नहीं तो। आई हैड अ क्लोज शेव, आई हैड अ क्लोज शेव, इसका मतलब होता है बिल्कुल जरा से बच जाना, बाल बाल बच जाना। तो बोल सकते हैं आई हैड अ नैरो एस्केप, आई हैड अ हेयर ब्रेड एस्केप। या फिर इधर आके बोलिए आई हैड अ क्लोज शेव, मेरी दाढ़ी साफ नहीं है, मैं बाल बाल बच गया। ठीक है, नेक्स्ट इज oh yeah, he had a hand in my success, मेरी सफलता में उसका हाथ है, इसका मतलब है उसका कंट्रीब्यूशन मेरी सक्सेस में है, उसने बहुत किया है मेरे लिए, ऐसा कहना हो तो बोल सकते हैं he had a hand in my success। ये पता है कब बोलते हैं, जैसे मुझे बहुत लगता है कि मेरी जो मम्मी है ना, वो उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी सक्सेस में, बिकॉज शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, और वो आपको कुछ भी जो कर रहे हो तो करवा कर ही छोड़ती हैं, वो आधा अधूरा कुछ नहीं करने देती हैं, तो और वो पीछे पड़ी रहती, करो 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 करो। तो आज इफ आई एम एंड माय सिस्टर्स आर देयर बिकॉज ऑफ हर ओनली, माय पापा इज आल्सो वेरी सेम, बट मेरी मम्मी ज्यादा है, मतलब शी इज द वन हु हैड अ हैंड इन आवर सक्सेस। हम लोग जो भी हैं उनकी वजह से, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि वो बहुत पीछे पड़ पड़ के काम करवाती हैं, वो बीच में छोड़ने नहीं देती हैं, वो डराकर करवाएं या प्यार से, वो उनका अपना तरीका है, बट वो करवाती हैं। तो आप लोग है ना, फिर ऐसा लगता है छोड़ो नहीं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अल्टीमेटली आप अपना गोल पहुंच ले ही लेते हो ऐसा। नेक्स्ट इज, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं यूज भी करती हूँ बिकॉज आई एम वेरी बिजी, तो मेरे को बहुत सारे काम होते हैं। आई हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, आयरन्स का मतलब है लोहे की सलाखें, और मेरी बहुत सारी लोहे की सलाखें जो हैं वो आग में पड़ी हैं, उनको कूटना है मुझे, इसका मतलब है बहुत काम है मुझे, आई एम टू बिजी, आई एम टू बिजी, आई एम एक्सट्रीमली बिजी, ओ माय गॉड आई एम सो बिजी। उसके लिए आप बोलो ना, आई हैव टू मतलब बहुत सारी मैनी आयरन्स इन द फायर, बहुत सारी सलाखें हैं मेरे पास आग में मतलब बहुत सारा काम है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट इज यू हैव योर विट्स ऑन वूल गैदरिंग, अक्ल तुम्हारी घास चढ़ने गई है क्या, अक्ल तुम्हारी घास चढ़ने गई है क्या, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यू हैव योर विट्स ऑन वूल गैदरिंग, यू हैव योर विट्स, विट्स बुद्धि, विट्स मतलब बुद्धि, वूल गैदरिंग घास चढ़ने गई है, घास इकट्ठा करने गई है क्या। तो ये आप किसी से अक्सर कहते भी होंगे, जब कोई बोले बेवकूफ है क्या, मत बोलो बेवकूफ है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसको बोलो यू हैव विट्स ऑन वूल गैदरिंग, यू हैव योर विट्स ऑन वूल गैदरिंग। अब ये आप लोग पढ़ो, और इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे चैट में पूछना, और चैट में पूछने के बाद में फिर मैं आपको जवाब दूंगी, है ना। अच्छा, ये आप वोकैबुलरी आज पढ़ो, कल मैं आपका है ना एक छोटा सा क्विज लेने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू हैव अ नाइस क्विज ओवर दिस। आपने मुझे है ना इस क्विज में मैं चेक करूंगी दैट हु विल गेट व्हाट मार्क्स, ओके, ठीक है, ओके मैम। एंड माय आइडियल पर्सन्स, अच्छा सरेश पूछ रहे हैं हु इज योर आइडियल पर्सन, आइडियल पर्सन मैम, my ideal person is my father. There are 3 people in my life, they are very important, अभी 4 हो गए हैं ऐसे लोग, बताती हूँ, 1 मिनट लूंगी। फर्स्ट my parents, both my father and mother. My parents are very different people because उन्होंने हमें कभी किसी चीज को लिए नहीं रोका है, they have allowed us for doing everything and that's why we never done anything wrong.
My father was always the one who never asked कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, क्यों जा रहे हो. My mother used to ask because she is a mother, but she never said that not to do this. She said, okay, if you like, you can do. तुम्हारे पिताजी चाहते हैं, you can do like that. And then I have Sandeep sir. When I was too young, like I was 19 years old, when I met him, हाँ मैं उनके पास इंग्लिश सीखने गई थी. और वो संदीप सर माय फादर्स, मेरे पापा और उनके पापा फ्रेंड्स हैं शुरू से. लाइक दोनों जर्नलिस्ट हैं, उनके फादर भी जर्नलिस्ट हैं, मेरे फादर भी जर्नलिस्ट हैं. तो मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ. तो जब मैं बहुत छोटी थी तो उनके पास इंग्लिश सीखने गई थी. और आज अगर मैं इंग्लिश थोड़ा भी जानती हूँ बिकॉज ऑफ हिम. एंड फिर मेरे हस्बैंड है, अभी 2 साल पहले हमारी शादी हुई है. एंड मेरे हस्बैंड इसलिए मेरे को आइडियल लगते हैं क्योंकि वो भी बिल्कुल वैसे ही हैं. मुझे वो कभी रोकते नहीं है. He doesn't say anything कि तुम ये क्यों कर रही हो या किस लिए कर रही हो, तुम्हारा क्या काम है, ये मत करो, वो मत करो, खाना बनाओ, ये करो, वो करो. मैं जो कर रही होती हूँ मुझे करने देते हैं और वो फिर अपने हिसाब से अपना सेट कर लेते हैं. So I think a woman should have people like this. एक woman को ये लोग होने चाहिए लाइफ में. Correct? Don't you think this? आपको नहीं लगता ऐसा? Yes, ma'am. कोई घर का होना चाहिए जो खड़ा हुआ है. Yes, ma'am. Exactly. Touch wood. Touch wood. लकड़ी का टेबल है. Touch wood. चलिए And guys. I also do the same. हाँ? I also do the same. For you, touch wood. Thank you so much. Thank you. Pav bhaji is my second favorite dish, and my mom is cooking that only. Oh wow. Kids batches is starting from 21st. Kids batches is starting from 21st. Timing is 5 to 6. Okay. अच्छा, हमको एक टॉपिक और है हमारे पास में, माय आइडियल पर्सन. बट ये मैं हैव वर्क खत्म करने के बाद में आप लोगों का एक परफॉर्मेंस लेने वाली हूँ. So be ready for that. ठीक है? Okay. Okay, ma'am. मीटिंग. एंड अच्छा मैं भूल गई हूँ आपको, आज मैं आपको टेस्ट दूंगी. ए एंड दा का टेस्ट देने वाली हूँ. टेस्ट सॉल्व करके कल मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं. ओके, बाय बाय. Okay, ma'am. टेक केयर. Ma'am. Bye, ma'am. Thank you so much, ma'am. Take care. Bye. Good night, ma'am. Revised vocabulary I'll ask tomorrow. Tomorrow it is your quiz day. Okay. Bye. Take care. Good night. Okay, ma'am.